Hello everyone, we are doing chapter number 6, Molecular Basis of Inheritance. This is the second video of the chapter, class 12, Biology. The topics to be covered in this video are search of genetic material and DNA replication. The search for genetic material. The first experiment was done by Griffith and it is called Griffith's transforming principle experiment. Frederick Griffith in 1928 used mice and Streptococcus pneumoniae. उन्होंने यूज़ किया माइस को और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया है जो निमोनिया कॉज करते हैं. स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी हैज़ टू स्ट्रेन्स, दो स्ट्रेन की फॉर्म में मिलते हैं ये. वन इज स्मूथ स्ट्रेन यानी S which is virulent. It has got a coating outside polysaccharide mucus coat which cause pneumonia. And second is rough strain or R strain which are non-virulent and they do not have any coat and do not cause pneumonia. What he did in his experiment, 4 steps में experiment को complete किया. First step, he injected S strain bacteria into mouse. S strain को mouse में डाल दिया and mouse was unable to survive. Second, R strain, he took R strain bacteria and injected into the mouse again. The mouse was able to survive because R strain doesn't cause any pneumonia. Third, now he heat killed S strain bacteria. S strain को गर्म कर लिया और उनको एक तरीके से वो मर गए. Now he injected this heat killed S strain bacteria into mouse and mouse was able to survive happily. No pneumonia was seen. Very good. Fourth step, what he did, very important thing, he mixed this heat killed S strain bacteria with the R strain bacteria and then injected into the mice. The mouse died. What happened? What happened? R strain तो नहीं कर रहा था निमोनिया, तो अब क्या हुआ R strain को? Means there was something in the S strain which helped in transforming R strain to S strain. He concluded that some transforming principle transferred from heat killed S strain to R strain. कुछ ऐसा था जो S strain से R strain में transform हो गया और R strain now was able to synthesize a polysaccharide coat and become virulent. This is due to the transfer of genetic material. Second experiment was done by Oswald Avery, Colin MacLeod and Macklin McCarthy. What they did, उन्होंने बिल्कुल कंटिन्यू रखा ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट को, उसी को बेस लिया और एस किल्ड बैक्टीरिया से स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के एस हीट किल्ड बैक्टीरिया से 3 बायोकेमिकल्स को सेपरेट किया, प्रोटीन, डीएनए एंड आरएनए. ओके, What they did, 3 टेस्ट ट्यूब में, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर उन्होंने इसमें डाला प्रोटीएज, तो प्रोटीएज एंजाइम से प्रोटीन खत्म हो गया, प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया. अब इसको मिक्स कर दिया आर स्ट्रेन से और चेक किया कि क्या आर स्ट्रेन कन्वर्ट हो रहे हैं एस स्ट्रेन में. यस, दे वर एबल टू ट्रांसफॉर्म इनटू एस स्ट्रेन. इट मीन्स प्रोटीन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ट्रांसफॉर्मिंग. सेकेंड टेस्ट ट्यूब में एंजाइम डाला आरएनएजेज, जिसने आरएनए को डाइजेस्ट कर दिया. अब आरएनए खत्म हो गया और अब इसको मिक्स कर दिया आर स्ट्रेन के साथ. इवन नाउ आर स्ट्रेन वर एबल टू टर्न इनटू एस स्ट्रेन, तो इट मीन्स आरएनए इज ऑल्सो नॉट रिस्पॉन्सिबल. थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, दे पुट द एंजाइम डीएनएजेज, जिसे डीएनए डाइजेस्ट हो गया और अब उसको आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में डाला गया
and R strain were unable to transform into S strain. It means DNA is responsible for transformation. यहाँ एक टेबल है, इस टेबल की फॉर्म में भी आप इस पूरे एक्सपेरिमेंट को देख सकते हो. हीट किल्ड एस सेल से 3 चीजें निकला, केमिकल, प्रोटीन, आरएनए एंड डीएनए. फर्स्ट टेबल पर फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है. फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीएज डाला, प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया, प्रोटीन नहीं रहा टेस्ट ट्यूब में. इवन देन आर सेल्स वर एबल टू ट्रांसफॉर्म. सेकेंड टेस्ट ट्यूब में आरएनए को खत्म करने के लिए आरएनएज एंजाइम डाला, आरएनए डाइजेस्ट हो गया. इवन नाउ आर सेल्स वर एबल टू ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एस सेल्स. थर्ड टेस्ट ट्यूब में डीएनए को डाइजेस्ट करने के लिए डीएनएज एंजाइम डाला, डीएनए डाइजेस्ट हो गया एंड नाउ the R cells are not transformed into S cells. It means who is responsible? DNA. Third experiment, Hershey and Chase experiment, जिसको ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट भी बोला गया. They grew bacteriophage virus. बैक्टीरियोफेज वो वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं. They grew bacteriophage virus on medium containing radioactive phosphorus P32. ब्लू कलर से नीचे लिखा हुआ है P32 मीडियम में बैक्टीरियोफेज को ग्रो किया. जब P32 मीडियम में ग्रो किया तो बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए था, अंदर का जो पार्ट था डीएनए, वो रेडियोएक्टिव बन गया. दूसरे सेट में क्या किया उन्होंने, दूसरे मीडियम में रेडियोएक्टिव सल्फर लिया S35 और उसमें बैक्टीरियोफेज को ग्रो किया. और बैक्टीरियोफेज का जो बाहर का पार्ट था, प्रोटीन कोड था, वो रेडियोएक्टिव बन गया. बिकॉज सल्फर हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन एंड फॉस्फोरस हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए. दोनों के अलग अलग रेडियोएक्टिव पार्ट बन गए. एक का प्रोटीन कोड रेडियोएक्टिव हो गया, एक का डीएनए रेडियोएक्टिव हो गया. अब क्या किया, नेक्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, दोनों को, जिसमें रेडियोएक्टिव प्रोटीन है और रेडियोएक्टिव डीएनए है, नीचे वाले में डीएनए है, ब्लू वाले में, पिंक वाले में रेडियोएक्टिव प्रोटीन है, दोनों को इंजेक्ट किया इन द ई कोलाई बैक्टीरिया. इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरिया के अंदर पहुंच गए ये वायरसेस. पहुंचने के बाद उनको सेकेंड स्टेप में उन्होंने ब्लेंडिंग किया. नाउ दे वांट टू सेपरेट द बैक्टीरिया फ्रॉम द वायरसेस. ओके, सॉफ्ट जेंटली एजिटेट किया ब्लेंडर में और टू सेपरेट द वायरस पार्टिकल फ्रॉम द बैक्टीरिया. और इसके बाद उसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया ताकि हैवी बैक्टीरिया नीचे बैठ जाएं और लाइटर वायरसेस के पार्टिकल्स ऊपर आ जाएं. फर्स्ट डायग्राम, पिंक वाले डायग्राम में देखिए, नीचे जो सेटल हुआ है मटेरियल, बैक्टीरियल पैलेट लिखा हुआ है लास्ट में, वो कलरलेस है और ऊपर का जो सुपरनेटेंट है वो पिंक है. और सेकेंड वाले में जो ब्लू वाला है, उसमें नीचे का जो बैक्टीरिया जहाँ सेटल हुआ था, पैलेट जो है वो ब्लू है, यानी वो रेडियोएक्टिव है, और ऊपर का नॉन रेडियोएक्टिव पार्ट रह गया सुपरनेटेंट. ओके, क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने, बैक्टीरिया इन्फेक्टेड विद वायरसेस हैविंग रेडियोएक्टिव डीएनए व रेडियोएक्टिव. जिन बैक्टीरिया को ऐसे वायरस ने इन्फेक्ट किया था जिसमें डीएनए रेडियोएक्टिव था, वो बैक्टीरिया भी रेडियोएक्टिव हो गए. ब्लू कलर के बैक्टीरिया रेडियोएक्टिव दिखाई दिए. नीचे फर्स्ट में देख लीजिए, ब्लू कलर में पैलेट जो नीचे दिखाई दे रहा है वो ब्लू कलर का है, सुपरनेटेंट कलरलेस है. तो यानी डीएनए जो था वो रेडियोएक्टिव था, इसलिए बैक्टीरिया भी रेडियोएक्टिव हो गए. और इट मीन्स कौन अंदर गया, बैक्टीरियोफेज का कौन सा पार्ट अंदर गया, डीएनए, नॉट द प्रोटीन. प्रोटीन तो बाहर रह गया सुपरनेटेंट में. सेकेंड में पिंक वाली की तरफ आ जाइए, वहां पर देखिए जो नीचे सुपरनेटेंट, तो ऊपर सुपरनेटेंट तो पिंक है और नीचे जो बैक्टीरियल पैलेट है वो कलरलेस है. सो बैक्टीरिया इन्फेक्टेड विद द वायरस हैविंग रेडियोएक्टिव प्रोटीन वर नॉट रेडियोएक्टिव. तो ये जो नीचे जो बैक्टीरिया बैठ गए हैं, दे आर नॉट रेडियोएक्टिव, ओनली द सुपरनेटेंट इज रेडियोएक्टिव. प्रोटीन्स डिड नॉट एंटर द बैक्टीरिया फ्रॉम द वायरस. सो ये क्या प्रूव कर रहा है, अगेन दिस प्रूव्स दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी की बुक में बना हुआ है, जिसमें फर्स्ट में S35 है, सेकंड में P32 है. और फर्स्ट स्टेप हुआ इन्फेक्शन, सेकंड ब्लेंडिंग, थर्ड सेंट्रीफ्यूगेशन. सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जो रिजल्ट्स दिख रहे हैं नीचे लिखे हुए, नो रेडियोएक्टिव डिटेक्टेड इन द सेल्स,
रेडियो एक्टिव इज डिटेक्टेड इन द सुपरनेटेंट, क्योंकि सुपरनेटेंट में प्रोटीन दिखाई दे रहा है और सल्फर 35 प्रोटीन में है। दूसरे वाले डायग्राम में देखिए, रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन द सेल्स एंड नो रेडियो एक्टिविटी इन द सुपरनेटेंट, क्योंकि सेल्स के अंदर फॉस्फोरस पहुंच गया P32 बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ DNA ऑफ बैक्टीरियोफेज। This shows that the DNA is a genetic material. Now, the properties of genetic material. What are the various properties of genetic material? First, they should have the ability to generate its replica, अपने जैसा एक और बना पाएं. Second, they should be structurally and chemically stable. Third, दे प्रोवाइड द म्यूटेशंस नीडेड फॉर द इवोल्यूशन, उसमें म्यूटेशन भी होने के चांसेस बने रहने चाहिए. एंड दे शुड एक्सप्रेस एज मेंडेलियन कैरेक्टर्स. किसी भी जेनेटिक मटेरियल में ये प्रॉपर्टीज का होना जरूरी है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं विच वन इज मोर स्टेबल, डीएनए और आरएनए. डीएनए इज स्टेबल, इट इज लेस रिएक्टिव. आरएनए इज हाईली रिएक्टिव एंड लेस स्टेबल, इसमें बहुत ज़्यादा म्यूटेशन होने के चांसेस रहते हैं. क्या दोनों में डिफरेंसेस हैं? डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड. डीएनए हैज गॉट थायमीन, आरएनए हैज गॉट यूरेसिल. इन डीएनए देर इज नो OH at the 2' end of the sugar. In RNA there is OH at the 2' end of the sugar. So इसमें राइबोस शुगर है, इसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर है. These three characters of DNA makes it stable. And these three characters of RNA makes it highly reactive. RNA is unstable, ये तो पता चल गया. इसलिए जो RNA वायरसेस हैं उनमें बहुत फास्ट म्यूटेशन देखने को मिलता है एंड दे इवॉल्व फास्टर. दूसरी तरफ DNA जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है. जब उसको हीट किया जाता है तो उसके दो डायग्राम देखिए नीचे, DNA को हीट कर रहे हैं, स्ट्रैंड्स दोनों अलग अलग हो रहे हैं, सेपरेट हो गए तीसरे में, और जब उनको वापस ठंडा किया जाता है, कूलिंग किया जाता है, दे कम बैक अगेन टुगेदर. इट इंडिकेट्स द स्टेबिलिटी ऑफ DNA. DNA इज स्टेबल. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, देखिए कि इन द फॉर्म ऑफ स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, कौन अच्छी स्टोरेज कर सकता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को? DNA, बिकॉज DNA इज स्टेबल. लेकिन ट्रांसफर करनी है अपनी इंफॉर्मेशन को तो वो कौन बेटर कर सकता है? RNA. RNA कैन डायरेक्टली कोड फॉर प्रोटीन. देखो यहां पर देखो, RNA से सीधा प्रोटीन बन रहा है बाय द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसलेशन. डायग्राम में देख सकते हो. बट DNA इज डिपेंडेंट अपॉन RNA फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन. पहले DNA से RNA बनेगा ट्रांसक्रिप्शन से, और फिर RNA से प्रोटीन बनेगा ट्रांसलेशन से. सो DNA इज डिपेंडेंट ऑन द RNA फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ genetic information. What is central dogma? It was proposed by Francis Crick. जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो करती है? DNA से RNA में एंड RNA से प्रोटीन में. The formation of RNA from DNA is called transcription. Formation of protein from RNA is called translation. And formation of DNA from DNA is called replication. 3 steps हो गए. But there is one more step. In some viruses, flow of information is in reverse direction. That is from RNA to DNA. You can see in the diagram also, and this is called as reverse transcription. तो 4 steps हो गया सेंट्रल डॉगमा में. Replication, transcription, translation and reverse transcription. Reverse transcription is seen in the HIV. It can undergo reverse transcription. RNA से DNA बन सकता है. DNA replication, very important, means formation of new DNA from the parental DNA. वॉटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया था सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ DNA रेप्लिकेशन. सेमी कंजर्वेटिव, सेमी मीन्स हाफ, यानी पेरेंट्स का हाफ डॉटर DNA के अंदर, हाफ पोर्शन पेरेंट का होगा और हाफ नया बनेगा. 1 पेरेंटल स्ट्रैंड है, 1 न्यू स्ट्रैंड है. 2 स्ट्रैंड का बन गया डॉटर DNA, बट उसका एक पेरेंटल है और एक नया है. दिस इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन. ओके, इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया
Michelson and Stoll ने in 1952 to prove the semi-conservative model of DNA replication. What they did? Michelson and Stoll experiment, very important experiment बच्चों, आप इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा हर स्टेप को, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं. दे प्रिपेयर 2 कल्चर मीडियम इन ई कोलाई में दो कल्चर मीडियम उन्होंने तैयार किए. पहला कल्चर था रेड कलर का बना हुआ है, एक ऑरेंज कलर का बना हुआ है, सामने देख लीजिए फ्लास्क के अंदर. वन इज हैविंग द अमोनियम क्लोराइड विद नाइट्रोजन 15, हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन है ये. तो इसमें जो डीएनए बने वो दोनों स्ट्रैंड डीएनए के हैवी हो गए और वो डीएनए कहलाया हैवियर डीएनए. दूसरा प्रिपरेशन किया उन्होंने, ऐसे मीडियम में डीएनए को डीएनए बनाया जिसमें N14 सॉल्ट्स थे अमोनियम क्लोराइड के, और सारे डीएनए जो बने उसके अंदर डीएनए जो था वो लाइटर वेट था, बिकम लाइटर. तो एक हो गया हैवी डीएनए विच हैज गॉट N15 एंड एक हो गया लाइटर डीएनए विच हैज गॉट N14. और ये कैसे पता किया कि कौन सा हैवी है कौन सा लाइटर है, कौन सा मेथड यूज किया? These two DNA can be separated by centrifugation in a cesium chloride density gradient. Cesium chloride density gradient का यूज करके इनकी डेंसिटी को कैलकुलेट किया गया. What they did exactly in the experiment? सारे डीएनए उन्होंने ले लिया N15. ओके, तो यहाँ डायग्राम में देखिए नीचे हैवी डीएनए लिखा हुआ है, रेड कलर का जहाँ पर बैंड बना हुआ है वो हैवी डेंसिटी वाला बैंड है, बिल्कुल नीचे जाकर इकट्ठे हो गए हैं सारे, हैवी डेंसिटी है इनकी. इस N15 डीएनए को N14 मीडियम में ट्रांसफर कर दिया गया. अमोनियम क्लोराइड है N14 वाला, N15 डीएनए है. तो जो फर्स्ट जनरेशन आफ्टर 20 मिनट्स मिला, वहां पर जब डेंसिटी ग्रेडियंट देखा गया तो वो कहीं बीच में जाके इंटरमीडिएट फॉर्म में दिखा हमें. ना वो हैवी दिखे, हैवी डीएनए थे, और ना ही वो लाइटर डीएनए थे. दे वर इंटरमीडिएट डीएनए बिटवीन N15 एंड N14. दिस शोज दैट न्यूली फॉर्म्ड डीएनए, जो नया डीएनए बना उसमें एक ओल्ड डीएनए है N15 वाला और एक नया डीएनए बन गया N14 वाला. दिस अगेन कंफर्म्स सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन. और 40 मिनट्स के बाद देखिए, और 40 मिनट्स के बाद आइए, 20 मिनट्स के बाद देखा, अब 40 मिनट्स के बाद देखिए एक और जनरेशन कंप्लीट हो जाएगी. यहां पर 2 तरीके के बैंड्स दिखाई दिए, एक लाइट बैंड और एक हाइब्रिड बैंड. हाइब्रिड बैंड भी दिखा और लाइट बैंड भी दिखा, यानी N14 N15 वाले डीएनए भी दिखे और N14 N14 वाले डीएनए भी दिखे. ये क्लियरली शो करता है द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव. कैसे कैलकुलेट करेंगे ये रेशियो? एक क्वेश्चन ये बहुत बार एग्जाम में आता है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ 3 टाइप्स ऑफ डीएनए. तीनों का अलग अलग डेंसिटी है और इनकी रेशियो बतानी है इन द 5th जनरेशन इन Michelson एंड Stoll एक्सपेरिमेंट. कैसे कैलकुलेट करेंगे? 0 से स्टार्ट करिए और 5th जनरेशन तक ले जाइए. 0 पर खाली हमारे पास N15 था, तो 1 N15, 0 इंटरमीडिएट एंड 0 लाइट. कोई इंटरमीडिएट नहीं है, कोई लाइट नहीं है, बिल्कुल शुरुआत में. अब 1 जो नंबर 1 है उसको मल्टीप्लाई कीजिए 2, 1 से 2 बनेंगे डीएनए. और ये दोनों डीएनए, ये ध्यान रखिए, अब हैवी वाला डीएनए खत्म फॉर एवर. यहां पर 0 आ गया. और इंटरमीडिएट टाइप के जो हमेशा आगे जितनी भी जनरेशन होंगी वो 2 ही रहेंगे अब. ओके, और नया तो अभी कोई बना ही नहीं, 14 लाइट वाला नहीं बना, ओनली 2 डीएनए बने थे यहां पर. सेकेंड जनरेशन में आ जाइए, 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 2 से 4 डीएनए बनेंगे. 4 में से 2 को तो पहले सेंटर में ले आइए, N15 N14 इंटरमीडिएट, क्योंकि ये हमेशा 2 ही रहने हैं. अब बाकी कितना रह गया? ओनली 2. आप उसको लाइट में ले जाइए, तो 0:2:2 यानी 0:1:1 रेशियो बन गया. अब 4 हमारे पास डीएनए थे यहाँ पर. थर्ड जनरेशन पर आइए, 4 को मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, तो टोटल 8 होना चाहिए. 8 में से 2 को सेंटर में रख दीजिए, 6 को साइड में ले जाइए. तो N14 वाले 6, N15 N14 वाले 2, तो रेशियो विल बी 0:1:3. अब यहाँ पर कितने डीएनए हैं हमारे पास? 8 मल्टीप्लाई बाय 2,
16 फोर्थ जनरेशन पे आ जाइए, 16 में से 2 सेंटर पे रख दीजिए, 14 को साइड में ले जाइए, माइनस कर दीजिए 2, टोटल तो 16 है, तो रेशियो विल बी 0:2:14 और 0:1:7। एंड लास्ट में 5th जनरेशन में हमारे पास 16 थे डीएनए, 16 से 32 बनेंगे, 32 में से 2 इंटरमीडिएट रहेंगे और 30 लाइट बन जाएंगे। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट। तो रेशियो विल बी 0:2:30 और 0:1:15। Now, the same type of experiment was done by Taylor and colleagues on the plant Vicia faba by using radioactive thymidine, और उन्होंने भी ये कंफर्म किया कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव है। Remember the name of the scientist, remember the name of the plant, and remember the radioactive material used, which can come in the exam. Now, the last, DNA replication. DNA replication starts at a point called origin. DNA कितना मर्जी लंबा हो, DNA का रेप्लिकेशन हमेशा वहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ पर ओरिजिन पॉइंट होता है, ओराय होता है। ओके, जहाँ ओ लिखा हुआ है डायग्राम में देखिए, वो ओरिजिन पॉइंट है, यहीं से ही डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। जहाँ ओरिजिन होगा वहाँ हेलिकेज एंजाइम आकर फिक्स हो जाएगा और डीएनए को ओपन करना शुरू कर देगा, अनवाइंड करना शुरू कर देगा। जैसे जिप खुलती है ऐसे खोलना शुरू कर देगा। जैसे जैसे डीएनए का स्ट्रैंड खुलता चला जाता है उसकी एक शेप बन जाती है, एंड दैट इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन फोक। ये वाई शेप का फोक बन जाता है। ओके, स्टार्टिंग क्लियर हो गया। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन चाहिए, हेलिकेज एंजाइम चाहिए और वाई शेप फोक बन गया। नेक्स्ट, दोनों स्ट्रैंड जो अलग खुल गए हैं, जो ओपन हो गए हैं, वो दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह से एक्ट करेंगे, पेरेंटल स्ट्रैंड की तरह से एक्ट करेंगे और उनके साथ एक नया स्ट्रैंड बनेगा। और जो नया स्ट्रैंड बनेगा उनके साथ वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड बनेगा। अब ये लेफ्ट हैंड साइड वाला डायग्राम देखिए, ऊपर 3 प्राइम लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, और जो नया स्ट्रैंड ब्लू कलर का जो बन रहा है वो 5 प्राइम से शुरू हुआ है। तो जो न्यू स्ट्रैंड बनेगा वो ऑलवेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही होगा। और इसमें सबस्ट्रेट क्या चाहिए, कौन सा मटेरियल चाहिए इसको बनाने के लिए? वी नीड डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, यानी शुगर हो, बेस हो और 3 फॉस्फेट लगे हों। ये एज अ सबस्ट्रेट की तरह भी काम करता है और एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी भी काम करता है क्योंकि इसमें फॉस्फेट है। ओके, नेक्स्ट, अभी भी हमारा डीएनए का स्टार्ट नहीं हुआ है रेप्लिकेशन। यहाँ डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होने से पहले एक प्राइमर चाहिए, आरएनए प्राइमर। देखो 3 प्राइम ऊपर वाला डायग्राम, लेफ्ट हैंड साइड पर जो ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर का जो स्ट्रैंड है 3 प्राइम लिखा हुआ है, उसके साइड में बिल्कुल कॉर्नर पर ग्रीन कलर का छोटा सा स्ट्रैंड बन गया है। दिस इज द आरएनए प्राइमर विच इज सिंथेसाइज्ड बाय द प्राइमेज एंजाइम। ये बिल्कुल एक स्टेप है, इस स्टेप के ऊपर चढ़कर बाकी सारे न्यूक्लियोटाइड अटैच होंगे। अब ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम, अब एंजाइम चाहिए। कौन सा एंजाइम है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का मेन काम शुरू हो गया है, न्यूक्लियोटाइड को लाना शुरू हो गया है, प्राइमर से अटैच करना शुरू कर दिया। प्राइमर स्ट्रैंड से न्यूक्लियोटाइड्स आकर ज्वाइन होते जाएंगे और नया स्ट्रैंड बनता जाएगा। रेड कलर का स्ट्रैंड बन रहा है, वो ऊपर वाले स्ट्रैंड में जो कॉन्टिन्यूअसली बनेगा। आगे चलिए देखिए, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन वन स्ट्रैंड इज फॉर्म्ड एज अ कॉन्टिन्यूअस स्ट्रेच। ऊपर यहाँ लेफ्ट हैंड साइड का डायग्राम देखिए, 3 प्राइम रेड कलर से है, 5 प्राइम पर ब्लू, पहले ग्रीन कलर का प्राइमर है, उसके ऊपर ब्लू कलर का स्ट्रैंड बन रहा है। ओके, सो फर्स्ट स्ट्रैंड में बिल्कुल कॉन्टिन्यूअसली ब्लू कलर का स्ट्रैंड बन रहा है। ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ लीडिंग स्ट्रैंड। और नीचे वाले स्ट्रैंड में लेफ्ट हैंड साइड का डायग्राम देखते रहिए, वहां पर 2 टूटे हुए फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं डीएनए के इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। वो ऑपोजिट डायरेक्शन में बन रहे हैं क्योंकि यहां पर स्टार्टिंग कहाँ है, 5 प्राइम है, तो यहां पर 3 प्राइम एंड आना चाहिए, तो स्टार्टिंग होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, उल्टी डायरेक्शन में ये यहां पर रेप्लिकेशन शुरू होगा और फ्रेगमेंट्स में होगा।
और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जितने भी फ्रेगमेंट हैं उनमें प्राइमर लगा हुआ है ग्रीन कलर का, हर छोटे फ्रेगमेंट में भी प्राइमर है। एंड दीज फ्रेगमेंट्स आर कॉल्ड एज ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ऊपर वाले में 2 फ्रेगमेंट्स हैं, नीचे वाले में 3 फ्रेगमेंट्स हैं ओकाजाकी। और जैसे जैसे ओपन होता जाएगा ऊपर का स्ट्रैंड जो है कॉन्टिन्यूस बनता जाएगा और नीचे वाले स्ट्रैंड में फ्रेगमेंट्स बनते चले जाएंगे। नीचे के जो फ्रेगमेंट्स हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स हैं, बाद में ज्वाइन होंगे बाय एन एंजाइम डीएनए लाइगेज एंड दिस इज कॉल्ड एज अ लैगिंग स्ट्रैंड। तो एक बना लीडिंग स्ट्रैंड, एक बना लैगिंग स्ट्रैंड। डीएनए पॉलीमरेज ने काम किया। और डीएनए पॉलीमरेज का एक और इम्पॉर्टेंट काम है, जब ये पूरा बनने लगता है, बन जाता है, तो वो प्रूफ रीडिंग भी करता है कि कहीं कोई बेस गलत तो नहीं आकर लग गया। सो आरएनए पॉलीमरेज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम। ई कोलाई कंप्लीट्स रेप्लिकेशन विद इन 18 मिनट्स। 18 मिनट में ई कोलाई अपनी पूरी रेप्लिकेशन कर लेता है। और इसका मतलब क्या हुआ, कितना फास्ट है रेप्लिकेशन, मीन्स 1 सेकेंड में 2000 बेस पेयर आकर लगने शुरू हो जाते हैं डीएनए के ऊपर, डीएनए के साथ। इतना फास्ट है ये। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इन यूकैरियोट्स द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस एट एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। सेल साइकिल में बहुत सारी फेजेस हैं, उसमें से एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है। और अगर इस रेप्लिकेशन के बाद सेल डिवीजन फेलियर हो जाए तो क्या हो जाएगा, पॉलीप्लॉइडी, डिफेक्ट आ जाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। डू द क्वेश्चन गिवन इन द बॉक्स, ट्राई योर नॉलेज, wait for my next video, subscribe the channel for getting the information about the next video. Thank you very much.